डुप्लीकेट वोट का देखिए आप रायबरेली में मोहम्मद कैफ खान। अगला देखिए फेक एड्रेस। ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಮತಗಳ್ಳತನ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಅನುರಾಗ್ ಠಾಕೂರ್ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸೋ ರಾಯ್ ಬರೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೂತ್ ಸಂಖ್ಯೆ 83, 151 ಹಾಗೆ 218 ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್ ಖಾನ್ ಅವರಂತಹ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 189, ಮತಗಟ್ಟೆ 131ರಲ್ಲಿ 47 ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಂಗಾಳದ ಡೈಮಂಡ್ ಹಾರ್ಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 0011, ಬೂತ್ ಸಂಖ್ಯೆ 103ರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳ ಮತದಾರರನ್ನ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಟೀಕಾ ಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಠಾಕೂರ್. ರಾಯ್ ಬರೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 47 ಮತದಾರರನ್ನ ಹೇಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು? ರಾಹುಲ್ ಜಿ ಮತ್ತು ಸೋನಿಯಾ ಜಿ ಈ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ 2 ಸಲ ಬಳಸಿದ್ರು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಒಮ್ಮೆ ಬಳಸಿದ್ರು. ವೈನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮತದಾರರನ್ನ ಹೇಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅವರನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನೀವು 3 ಸಲ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಇದನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ನೋಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅದು ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ ಅಂತ ಠಾಕೂರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರ ಇವಿಎಂಗಳು ಮತ್ತು ಮತದಾರರನ್ನ ದೂಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಕಾಮನ್. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಇವಿಎಂಗಳು ಹಾಗೆ ಮತದಾರರನ್ನ ದೂಷಿಸ್ತಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಪರವಾಗಿ ಇವಿಎಂಗಳು ರಿಗ್ಗಿಂಗ್ ಆಗಿವೆ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನೇಕ ಸಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇವಿಎಂಗಳನ್ನ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ಗಳಿಗೆ ಮರಳಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಹೊಸ ನೆಪವನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಟೀಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಜಿಗೆ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಮಾತಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಭಯ ಇದೆ ರಾಹುಲ್ ಜಿ? ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಕೊಡದೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡ್ ಹೋಗೋದು ನಿಮ್ಮ ಜಾಯಮಾನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಓಡ್ ಹೋಗೋದು. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದ್ರೂ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ? ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ತಿರುಗೇಟನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. और इस परिवार और पार्टी का शुरू से ये रहा है कि चुनाव हारते हो तो वोटर पे ठीकरा फोड़ दो, या इलेक्शन कमीशन पे ठीकरा फोड़ दो, या इलेक्शन कमीशन के नियमों पर, कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दो. इंदिरा गांधी जी ने तो यहां तक कह दिया कि मतदाता मूर्खों का टोला है. इंदिरा गांधी सेड वोटर्स अ बंच ऑफ फूल्स. और इस 77 का चुनाव हारने के बाद कहा. 1999 में जब राजीव गांधी जी हारे तो उन्होंने बैलेट पेपर पर ठीकरा फोड़ दिया. वो उस समय कहते थे इलेक्ट्रॉनिक मशीन लाओ. आज उनके सुपुत्र राहुल गांधी जी कहते हैं कि भाई ईवीएम बंद करो, वापस बैलेट पेपर पे जाओ. और ये देखिए शूट एंड स्कूट का इनका पुराना है. इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी जी को बुलाया, वोटर रोल इशू पे नहीं गए. उनको कहा एविडेंस दे दो, बार बार कहा, नहीं दिया राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने. और यहां तक कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, आरपी एक्ट में अगर देखें सेक्शन 80 में तो नो इलेक्शन पिटिशन फाइल की इनके किसी भी नेता ने, किसी चुनाव लड़ने वाले ने. और अगर आप दाहिनी ओर देखेंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और आरजेडी को ये पूरा चार्ट देखिए आप ध्यान से. इलेक्शन कमीशन आज 13वां दिन हो गया लगातार बिहार में. वहां तो इनकी कोई इस तरह की बातचीत नहीं है. खुले मन से इलेक्शन कमीशन बात सुन रहा है. बिहार के लोगों को कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जब इनके पास बिहार में मुद्दा कोई नहीं बचा, चुनाव में जाने से पहले हार स्वीकार कर ली, तो अब झूठे आरोप लगाते हैं. लेकिन जब 2019 और 24 की बात आई तो 1.3% और 4.4% और 2014 में मात्र 3.4%. ये कम है 2004 और 2009 से. तो मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं और विपक्ष से पूछना चाहता हूं, क्या आपने उस समय वोट चोरी की थी, वोट फर्जीवाड़ा किया था? चुनाव आपने वैसे जीता था. आप देश के मतदाता को नीचा दिखाने का कांग्रेस पार्टी काम कर रही है. अपमान कर रहे हो आप देश के मतदाताओं का. झूठ बोलो और भाग जाओ,
आरोप लगाओ भाग जाओ, सबूत मत दो, केवल आरोप लगाओ, भ्रम फैलाओ। और कांग्रेस पार्टी ने जो फॉर्म 17C है उनके सभी एजेंट ने साइन किया, कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ। अगर उनके पोलिंग एजेंट कोई आरोप नहीं लगाते तो आप क्यों कैसे कह सकते हो? कोई इलेक्शन पिटीशन आज तक फाइल नहीं की कांग्रेस के किसी नेता ने, तो आज इस तरह के झूठे आरोप क्यों लगते हैं? और कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो चुका है। के.एन. रजन्ना ने, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जब अपनी पार्टी पर सवाल खड़ा किया कि भाई हमारी सरकार थी 2024 में कर्नाटक में कांग्रेस की, जब ये वोटर लिस्ट बनी तब आप आंखें मूंद करके बैठे थे, हाथ पे हाथ धर के बैठे थे, तब क्यों नहीं बोले? तब तो मुंह में दही जम गया था, होंठ सिल गए थे। डुप्लीकेट वोट का देखिए आप, रायबरेली नाम तो सुना होगा आपने, राहुल जी ने भी सुना होगा। रायबरेली में मोहम्मद कैफ खान, बूथ नंबर 83, 151, 218, सब जगह इनका नाम है, नाम सेम है, बस बाप का नाम भी सेम है, लेकिन वोट 3 पोलिंग बूथों पे बना हुआ है, 83, 151, 218 में। अगला देखिए फेक एड्रेस, 47 वोटर आईडी डायमंड हार्बर में। अभिषेक बनर्जी जी, डायमंड हार्बर में 47 वोटर आईडी हाउस नंबर 189 के पोलिंग बूथ 131 पर रजिस्टर हुए हैं। ये रायबरेली में हुए हैं जो 47 वोटर आईडी, और डायमंड हार्बर में मल्टीपल रिलीजन के एक ही घर नंबर 0011 पे, बूथ नंबर 103 पे, फाल्टा असेंबली में, डायमंड हार्बर जो लोकसभा है वहाँ पे रजिस्टर हुए। और नाम भी अगर आप पढ़ेंगे तो अगर रायबरेली के पढ़ूं तो मोहम्मद इस्लाम है, मोहम्मद इरफान है, मोहम्मद कासिम है, फिर साफिया मोहम्मद कासिम है, फ़करून निहा है, मोहम्मद कबीर है, श्रीमती फरीदा बानो है, शकील अंसारी है, मोहम्मद अयूब है, सबनम है। ये सारे नाम रायबरेली के हैं। राहुल जी को कभी ये नाम नहीं दिखे, सोनिया जी को कभी ये नाम नहीं दिखे कि 47 वोटर आईडी एक ही घर पे कैसे आए? राहुल जी, आप तो कई सालों से वहां पे वोट मांग रहे हो। अगले पे देखिए, फेक रिलेटिव की आप बात करते हैं, खुर्शीद आलम एक ही रहता है लेकिन इनका बाप बार बार बदल जाता है। और जब कांग्रेस ऐसे वोट चोरी के झूठे आरोप लगाती है तो इसके पीछे कांग्रेस का गेम प्लान नजर आता है, जो घुसपैठिया वोट बैंक, एकमात्र कांग्रेस का इसके पीछे एजेंडा है घुसपैठिया वोट बैंक को बचाना कैसे है, एक वर्ग के वोट बैंक के लिए कैसे लड़ाई लड़नी है, राष्ट्र की सुरक्षा के साथ कैसे खिलवाड़ करना है, और सच्चे पक्के भारतीयों के वोट को नीचा कैसे दिखानी, ये राहुल गांधी जी और विपक्ष का आज का एजेंडा है। और मैं आपको आगे ये 6 चेहरे आप देख लीजिए, इनके लोकसभा के नाम देख लीजिए, वायनाड, रायबरेली, डायमंड हार्बर, कन्नौज, मैनपुरी, कोलाथुर विधानसभा, 5 लोकसभा 1 विधानसभा। अब इनमें देखिए किया क्या है। वायनाड में 93,499 डाउटफुल वोटर हैं, जिनमें से 20,438 डुप्लीकेट वोटर हैं, 17,450 फेक एड्रेस के साथ हैं, 4,246 मिक्स्ड हाउस होल्ड है, और 51,365 वोटर मास एडिशन में हुए। अब आप नाम देखिए साहब, मैमूना नाम है, बूथ नंबर 135 है, और फिर वो 115 पे भी वही है, फिर 152 में भी वही है। विधानसभा एक है इरानाड, लेकिन पोलिंग बूथ 135, 115, 152 में मैमूना बार बार वोटर बन जाती है। लेकिन राहुल जी, वायनाड से लेकर रायबरेली से लेकर डायमंड हार्बर हो या अखिलेश जी का लोकसभा क्षेत्र हो, हर जगह ये सवाल खड़ा होता है कि इन्होंने फर्जी वोट क्यों बनने दिए, आखिरकार इन्होंने ये काम क्यों किए, क्या ये वोट की चोरी और घुसपैठियों को जो संरक्षण है इसको देखते हुए अपना इस्तीफा देंगे? तो मेरा उनसे सवाल है, अखिलेश जी, राहुल जी, प्रियंका जी, ये कब इस्तीफा देंगे? और प्रोपोगेंडा किंग तो आपको पता ही है कौन है,
जो हर बार भय और भ्रम फैलाने का काम करते हैं। और प्रोपेगेंडा किंग के लिए कोई नई बात नहीं है। चुनाव से पहले वो संविधान के बारे में भ्रम फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, लोगों में प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, और चुनाव हार जाने के बाद फिर खिसक जाते हैं, विदेश यात्रा पर चले जाते हैं। और मैं राहुल जी से कहूँगा, प्रोपेगेंडा फैलाने की बजाय अपना एजेंडा बिहार चुनाव के लिए कोई तय करें, आत्मनिरीक्षण करें, आत्मचिंतन करें। और जो देश की जनता ने मोदी जी को बार बार जिताया, भारतीय जनता पार्टी को बार बार जिताया, देश की जनता को गाली देना बंद करें।